کیا ہے؟ یہ شکر گزاری ہے کہ اس نے ہمیں صحت بخشی. نمبر 2 پہ جو میری زندگی میں سب سے عظیم کام یہ ہے کہ اس نے نجات بخشی. اگر وہ نجات نہ بخشتا تو ہم یہاں ہوتے کبھی بھی نہ ہوتے. تو یہ کمالیاں ہیں, یہ شکر گزاریاں ہیں جو ہمیں وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ شکر گزاریاں ہیں. کہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جب بائبل میں کوئی کام ہوا تو ہمیشہ شکر گزاری کی گئی ہے. چھوٹی چھوٹی ریفرنس دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 365 دنوں کی شکر گزاری کرتے جائیں گے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتی ہوں اور وہ سب اس سے واقف ہیں, اور وہ ہے نوح کا طوفان. ٹھیک ہے جی, یعنی جب طوفان آیا تو لکھا ہے کہ 40 دن اور 40 رات وہ طوفان رہا. یعنی سیلاب کے سوتے پھوٹ پڑے, آسمان سے کھڑکیاں کھل گئی, لیکن ہر طرف پانی ہی پانی تھا, ہر طرف پانی ہی پانی تھا. لیکن جو اس کے ساتھ چلا, جو راست باز تھا, اس کا خاندان اور اس کے جسے کہنا چاہیے بال بچے, ان کی بیویاں, یعنی پورا گھرانہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کا پوری تفصیل ہے, آپ کو پتا ہے, وہ سارے بچ گئے, یعنی کشتی میں سوار تھے. اور جو میں بات بتانا چاہتی ہوں, جس پہ ہم زور دینا چاہ رہے ہیں, کہانی پہ نہیں, اس بات پہ زور دوں گی. لکھا ہے کہ جب اس نے سارا دیکھ لیا کہ اب طوفان تھم گیا ہے, یعنی جو بارش تھی, پانی سوکھ چکا ہے, تو جب پانی سوکھ چکا ہے, وہ سارا خاندان باہر آیا, تو سب سے پہلے اس نے شکر گزاری کے لیے وہاں سے پاک جانور لیے, پرندے لیے, اور سوکھنی قربانی پیش کی. یہ ہے شکر گزاری. یعنی جس حالات میں سے خدا ہمیں نکالتا ہے, اور کوئی بھی نہیں تھا سوائے نوح کے. نوح کو خدا نے پسند کیا, وہ راست باز تھا. جب ہماری عادات, ہمارا چال چلن خدا کو پسند آتا تو ہمیں برکتیں دیتا. اگر آپ اپنی زندگی میں برکتوں کا شمار کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی برکتیں جو ہے, شکر گزاریاں بڑھتی چلی جائیں گی, ختم نہیں ہوگی. کرنا شروع تو کریں. اور یہاں بھی یہ لکھا ہے کہ انہوں نے شکر گزاری کیسے کی, کہ خدا تیرا شکر ہو. اسے تو نہیں تھا پتا, یہ ضرور ہے کہ اس کا ایمان تھا کہ خدا جو کچھ کہتا ہے وہ کرتا ہے, تو اس پہ خدا کو اس کو خدا پر بھروسہ تھا کہ وہ مجھے بچائے گا. لیکن اس کے باوجود انسان ہونے کے ناطے وہ سوچ سکتا ہے کہ شاید ڈوب ہی نہ جاؤں, شاید ہم ماری نہ جائیں, شاید کشتی ہی ڈوب جائے. لیکن جب خدا ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے. اور جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے سب سے پہلے سوکھنی قربانیوں کے ذریعے شکر گزاری کی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور شکر گزاری کیا کی تھی؟ اپنے جتنا یعنی اس کا خاندان تھا, جتنے اس کے اندر تھے, وہ بحفاظت خدا کی رحمت سے باہر آئے. تو کیا ہم کھڑے ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے اور شکر گزاری کرنا شروع کریں گے کہ خدا تیرا شکر ہو کہ تو ہر روز ہماری فیملیز کو محفوظ رکھتا ہے. سب سے پہلے صرف اپنی فیملی کے لیے شکر گزاری کریں گے کہ خدا تیرا شکر ہو تو نے میری فیملی کو اپنے پروں کے نیچے رکھا ہوا ہے. خدا تیرا شکر ہو تو نے میرے خاندان کو, میرے بال بچوں کو ہمیشہ خطرات سے بچاتا ہے, ہمیشہ مشکلات سے بچاتا ہے, ہمیشہ بیماریوں سے بچاتا ہے. شکر گزاری کریں. جتنے بھی خدا نے آپ کے بچوں کو ترقیاں دی ہے ان کا شکر کریں. آپ کے بچوں کو نجات بخشی ہے اس کا شکر کریں. آپ کے بچے خدا کی ستائش کرتے ہیں اس کا شکر کریں. آپ کے بچے کی گواہی دیتے ہیں اس کا شکر کریں. آپ کے بچے روزانہ بائبل پڑھتے ہیں اس کا شکر کریں. کہ خدا تیرا شکر کرتا ہوں کہ تم ہر روز ہمارے ساتھ رہتا ہے. خدا تیرا شکر کرتا ہوں کہ تم ہر روز ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے, ہمارے بچوں کی فکر کرتا ہے, اپنے پروں کے نیچے سنبھال کے رکھتا ہے. ورنہ ابلیس کو منہ کھولے دھاڑتا ہے کہ کس کو ہڑپ کر لے. لیکن یہ خدا تو ہے جو ہر روز ہماری حفاظت کرتا ہے, ہر روز ہماری پالنا کرتا ہے, ہر روز ہمیں اپنے پروں کے نیچے رکھتا ہے. مسائل سے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے, بدی سے, برائی سے, آزمائش سے, کہ خدا تیرا شکر کرتے ہوئے ہمارے بچوں کو بچائے رکھتا ہے. شکر کرتے چلے جائیں, شکر کرتے چلے جائیں کہ خدا تیرا شکر کرتے ہوئے تو بیماریوں سے بچاتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تیری تعریف ہو, شکر گزاری کریں. اپنے ایک ایک بچے کے لیے اس کا شکر کرتے چلے جائیں, کیونکہ خدا کو شکر گزارنا پسند ہے. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. تیری تعریف, تیری تمجید, تیری مدد,
यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ रखें प्लीज। अभी एक और कहानी हम देखेंगे जिसमें वाज़िया तौर पर शुक्रगुजारी, सोखियां करवानी, अपने माल और दौलत का हिस्सा किस तरीके से वो खुदा की हजूरी में लेकर आते थे। और वो है पहला सैमुएल, और उसमें लिखा है कि कोस्तानी मुल्क में एक आदमी था अल्काना। और मैं फिर कह रही कि मैं गहराई तफसील में नहीं जाऊंगी, सिर्फ जिस मकसद को हमने बयान करना लेना है उसी पे मैं फोकस करूंगी। तो यहाँ लिखा है कि वो साल ब साल शुक्रगुजारी करता था, अपने सारे खानदान को लेकर हैकल में जाता था और जाके शुक्रगुजारी करता था। और शुक्रगुजारी के लिए जितना खुदा ने उसको माल और दौलत दिया होता था, ये नहीं कि वो साल ब साल यानी सिर्फ साल बाद ही करता था, हर रोज भी करता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब बड़ी जगह पे जाके वो जैसे वो भेड़ बकरियां कुर्बान की जाती है, वो सब कुछ वो करता था। और जब वो शुक्रगुजारी करता था तो एक बड़ा मौजज़ा हुआ। कोई बताएगा क्या मौजज़ा हुआ? हन्ना के औलाद नहीं थी, खुदा ने उसको औलाद बख्शी, खुदा ने उसको औलाद दी शुक्रगुजारी करने से, हम्द करने से। बेशक हन्ना खुद भी रोती थी, खुदा के आगे चलाती थी कि मुझे औलाद दे, लेकिन कैसे दी गई? वो रुकी नहीं, वो भी हम्द करने के लिए, वो भी शुक्रगुजारी करने के लिए अपने हस्बैंड के साथ गई और खुदा ने उसे बरकत दी। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, हालात चाहे मुश्किल भी हो, परेशानी हो, दुख आ जाए, ये सबसे बड़ा उसके लिए दुख था कि उसकी सोच जो थी उसे तंग करती थी, उसे परेशान करती थी, तरह तरह से उसे छेड़ती थी और वो रोती थी। लेकिन रोती किसके आगे थी? खुदा के आगे। लेकिन रोने से भी ज्यादा वो ये करती थी कि खुदा तेरा शुक्र हो, तू मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। और खुदा ने उसको इस मुश्किल से निकाला। तो मैं आज चाहूंगी कि जिस तरीके से कलाम हमें बताता है कि उसका खामद जाके साल ब साल, हमारे पास भी 365 दिन है जिनमें आज हम जमा हुए। शुक्रगुजारी तो आप हर संडे करते हैं, मेरे ख्याल में हर रोज करते होंगे कि खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मुझे सेहत दिया है। लेकिन 365 दिनों की शुक्रगुजारी जैसे आज हम कर रहे हैं, वो भी साल ब साल जाकर शुक्रगुजारी करता था। भेड़ बकरियां, मेंढे, जो भी उसके दिल में जो उसकी तौफीक थी उसके मुताबिक वो उन्हें ज़िबा करके खुदा की हजूरी में पेश करता था और खुदा उससे खुश होता था। तो अगर आज हम खड़े होंगे और यही कहेंगे कि खुदा तेरा शुक्र हो, 365 दिनों में हमारे ऊपर मुश्किलात आई, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बड़ी परेशानियां आई, कभी बीमारी आ गई, कभी रुपए पैसे की कमी आ गई, कभी नौकरी छूट गई, कभी कोरोना वायरस। यानी अगर आप 365 दिनों का हिसाब लगाए तो हम भी बहुत सी मुश्किलात में से निकले। और आज खुदा ने मौका बख्शा है कि हम 365 दिनों की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। तो करना चाहेंगे? तो आए अपने कदमों पे खड़े हो और शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा 365 दिनों में तूने बीमारी से निकाला, तूने मसाइब से निकाला, तूने बुरे हालात से निकाला, तूने हमारे बंधुओं को तोड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा तेरा शुक्र हो, तूने कोरोना से बचा के रखा, तूने हर किस्म की गंदे वायरस से, बीमारी से बचा के रखा। बीमारी आ भी गई, लेकिन खुदा तेरा शुक्र है कि तूने हमें शिफा दी, क्योंकि तू तबीब आज़म है, तू शाफी है, तू मसीहा है, तू हमारे रोगों का मुदावा है। जब तू प्यारे खुदा हमारे साथ होता है तो बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कि खुदा तेरा शुक्र करते इन 365 दिनों के लिए जिसमें खुदा तूने हमें जिंदगी बख्शी, उम्र दराजी बख्शी, ना सिर्फ मुझे, ना सिर्फ मेरी बीवी को, बल्कि मेरे बच्चों को तूने मुसीबतों से निकाल कर अपने कदमों में रखा। तेरा शुक्र करते हालेलुया, हालेलुया। उसकी शुक्रगुजारी करते चले जाओ कि खुदा हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से कर रहे हैं कि खुदा मुसीबतें आई, परेशानियां आई, दुख आए, हालात खराब हुए, रुपए पैसे की मुश्किल आ गई, लेकिन खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू यहाँ वाहिनी, तू तबीब आज़म, तू हमारा पालने वाला। जब तू हमारे साथ रहा तो आज हम तेरी हजूरी में खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी सताइश, हालेलुया, हालेलुया। शुक्र करते चले जाए, शुक्र करते चले जाए। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो,
तेरी तमजीद, हालेलुया, हालेलुया, तेरी सताइश, तेरी तमजीद हो। शुक्रगुजारी करते चले जाए, 365 दिनों की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, कि खुदा तेरा शुक्र हो। फलां डेट पर मेरे घर में आना नहीं था, लेकिन खुदा तूने फिर भी सेव कर दिया। फलां टाइम पर हमारे घर में पैसे नहीं थे कि हमारी जरूरत पूरी हो सकती, फिर भी खुदा के हमारे लिए हुआ है, तूने मुहैया किया। कि खुदा तेरा शुक्र करते हैं। मैं बीमार हो गई थी, लेकिन खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने अपने कभी हाथ को बढ़ाकर मुझे शिफा दी। खुदा मेरी नौकरी चली गई थी, मेरे हालात बुरे हो गए थे, मैं फंस गया था, मैं मुश्किलात में आ गया था, लेकिन तो भी खुदा तेरे इस फजल के लिए, तेरे कभी हाथ के लिए तूने हम पर बच गए। तेरा शुक्र, हालेलुया, हालेलुया, तेरी तमजीद, तेरी मांग, हालेलुया करते गए शुक्रगुजारी। 365 दिन कोई छोटे से दिन नहीं है। सर्दी गर्मी में वो आपको संभाल के रखता है, हर रोज वो आपके साथ रहता है, हर रोज वो आपकी पालना करता है। आप सवेरे सलामती से जाते हैं, सलामती के साथ वापस आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी सताइश, तेरी तमजीद, यीशु के नाम से। तशरीफ रखिए प्लीज। मेरे पास टाइम जो है वो खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी एक और स्टोरी जो है वो शेयर करना चाहती है, और वो है अय्यूब के बारे में। और वो भी फेमस स्टोरीज तो बाइबल भरी पड़ी है शुक्रगुजारी के साथ। तो कलाम में लिखा है कि हम करते हुए उसकी बारगाहों में और शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो। जान रखो कि खुदा की खुदा, हम उसके लोग और उसी की चरागाह की भेड़े हैं। जब हम उसकी भेड़ है ना, तो फिर भेड़ मिलमलाती है, पुकारती है। और पुकारती कैसे है? कभी शेर होकर, कभी भूखे रहकर, यानी कभी डकार मारती, जिसे कहना चाहिए शुक्रगुजारी के साथ। तो एक और छोटी सी कहानी आपके सामने रखूंगी, और वो है अय्यूब के बारे में। कलाम में लिखा है कि अय्यूब जो था कि अहले मशरिक में इस कदर उसके पास फराग से कसरत से दौलत थी, मालो दौलत इतना ज्यादा था कि अंबार लगे हुए थे, अनगिनत दौलत थी। लेकिन इसके बावजूद हर वक्त चुकन्ना रहता था, हर वक्त शुक्रगुजारी करता था, यहाँ तक कि अपने बच्चों की दावत करता रहता था। मैरिड बच्चे हो गए जिनको बनाता था, दस्तरखान लगाता था और शुक्रगुजारी करता था। और दिल में क्या करता था कि खुदा अगर मेरे बच्चों से कोई खता हो गई है, मेरे बच्चों से कोई गलती हो गई है, तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे माफ कर दे, मेरे बच्चों को माफ कर दे। और उसके इवज वो बहुत सी ज़ियाफत करता था, भेड़ बकरियों को ज़िबा करता था और खुदा की शुक्रगुजारी करता था। जब खुदावंद आपको, मैं कहती हूँ कि रास्तबाज जो है ना भी हो, मैं तो कहती ना भी हो, तो मेरे चेहरे पे ऐसे ही खुदावंद का नूर होगा। और आप भी सारे ऐसे ही हैं, पेट में रोटी हो ना हो, जेब में पैसे हो ना हो, फिर भी उसकी शुक्रगुजारी है। हम ऐसे ही हैं क्योंकि हम रास्तबाज हैं, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। तो अगर अय्यूब शुक्रगुजारी करता था, तो अब मैं खड़े होने के लिए नहीं कहूँगी, वैसे बता रही हूँ, तो हर रोज अपने बच्चों के लिए शुक्रगुजारी किया करें, हर रोज अपने बच्चों की छानबीन किया करें। दाऊद कहता है, खुदा को कहता है, सारा चार्ज ही खुदा को दे देता है, सारा कंट्रोल ही खुदा को दिया हुआ। कि कहता है कि आप खुदा तू मेरे ख्वाबगाह की उसको देख, कहीं झोल तो नहीं है, कहीं कोई मेरा टेढ़ापन तो नहीं है। तो मैं कहती, मैं तो हमेशा, बल्कि ऑलमोस्ट ये मैं भी कहती हूँ कि खुदा देख, तू ही लीड कर, तू ही गाइड कर, तू ही प्रोवाइड कर। अगर मुझ में झोल है, अगर मेरे ना चाहते कोई गलती हो गई है, तो खुदा तू बचा। आप ही अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे? खुदा मेरे बच्चों को आजमाइश से बचा। बुरे हालात में हम जिंदा हैं, बुरे हालात में हर तरफ बदी का, आजमाइश का दौर हो रहा है, लेकिन कैसे बचते हैं? दुआओं से और शुक्रगुजारियों से। अपने बच्चों की छानबीन किया करें कि मेरा बच्चा बाइबल पढ़ रहा है, मेरा बच्चा दुआ कर रहा है, कि सारा दिन वो तख्ती पे, मैं कहती हूँ फोन पे लगा रहता है, वीडियो और गेम्स ही देखता रहता है। जरूर देखें, चले देना चाहते दें, लेकिन टाइम मुकर्रर करें। और ये भी देखें कि क्या मेरे बच्चे ने दुआ की है, क्या मेरे बच्चे ने बाइबल पढ़ी है,
کیا میرا بچہ روزانہ خدا کے ساتھ بات کرتا ہے؟ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے ٹائم سپینڈ کریں گے، کوالٹی ٹائم گزاریں گے، تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ کا بچہ کبھی کسی بدی میں پڑے گا، کبھی آزمائش میں پڑے گا۔ آزمائش آ بھی جائے تو وہ نکل جائے گا، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔